السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے زندہ صدیاں ایپیسوڈ نمبر 36۔ بتا رہا ہوں ہتھیارے، بتا رہا ہوں میں نے تیرا روپ دھارن کر کے اس کا شریر گلا دیا، اس سے اس کی سندرتا چھین لی، جو میرا تھا اس پر تیرا قبضہ ہو گیا تھا۔ اب نہ کچھ تیرا رہا اور نہ میرا، وہ ڈھانچہ بن گئی، مگر اس نے تیرا پیچھا نہ چھوڑا، نہ تو نے اس کا، اور وہ جس کی میں نے لاکھوں سال پوجا کی اسے میں نے چڑیل بنا دیا میں نے، پر اس نے تجھے حاصل کرنے کا کام جاری رکھا اور سندر ناریوں کی جان لے کر ان کے ذریعے تجھے خوش کرنے لگی۔ تو خود سوچ مجھ پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس نے تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے کے لیے اپنے گیان سے کام لیا اور ایک ایسی چال چلی کہ میں تجھے مار نہیں سکتا، ورنہ اب تک تو تیری ہڈیاں بھی بسم ہو گئی ہوتی اور پھر میرا صبر ختم ہو گیا۔ میرے من کی آگ نے مجھے پھونک دیا اور میں نے وہ قدم اٹھا لیا اور اس کی آواز لرز گئی۔ کون سا قدم؟ میں سوال کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ بتا تو چکا ہوں تجھے ہتھیارے کہ میں نے اس کے گلا کر ڈھانچہ بنا دیا، اب وہ تیری رہی نہ میری، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں نے اب ٹھیک کام کر دیا۔ وہ کیا؟ میں نے اسے قبر میں دفن کر دیا ہے اور تجھے میں نے مہان جے کال کے حوالے کر دیا۔ اب تو جے کالی بن کر رہے گا، گیان گرداری کا داسی، کال منی کالی دیوی کا بھرمنگی، سادھو منش میاں منی کے چرنوں کی دھول پھانک لے گا تو لوگ تجھے سادھو سنت سمجھ کر تیری سیوا کریں گے۔ تجھے تو روکھی سوکھی کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی، پھر تو مر جائے گا اور ہم جیتے رہیں گے، میں بھی اور کوروتی بھی۔ میں اسے قبر سے نکال لوں گا اور تو میری مان لے، ایک دن وہ پگھل جائے گی۔ وہ سوچے گی کہ گوتم بھنسالی بدصورت ہے تو کیا، مجھ سے لاکھوں سال سے پریم تو کر رہا ہے اور وہ مجھے سویکار کر لے گی۔ اس کے چہرے پر پھر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ میری ذہنی حالت جوں کی توں تھی، اپنے آپ کو بھول گیا تھا۔ ذہن پر کچھ میٹھے میٹھے سے نقوش ضرور تھے۔ یہ احساس تھا کہ میں شیام سندر نہیں، کچھ اور ہوں، لیکن کچھ اور کیا ہوں یہ یاد نہیں تھا۔ جا اور دعا دے اسے کہ اس نے تجھے میرے ہاتھوں سے بچا لیا، ورنہ۔ وہ کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا اور پھر مجھے اس کی فضول باتیں یاد آنے لگی۔ پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یادداشت گم ہو جانے کے دور کی باتیں مجھے کیسے یاد رہ گئیں اور میں ان کے بارے میں کیسے لکھ رہا ہوں، تو میں اس کے بارے میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا۔ پہلے سے بتانا قبل از وقت ہوگا۔ غرض کہ وہ شخص جس نے مجھے اپنا نام گوتم بھنسالی اور میرا نام شیام سندر بتایا تھا، وہ گیا، اور بقول اس کے کہ وہ دونوں جو مجھے اس مندر میں ملے تھے اس کے ہرکارے تھے، جنہوں نے اس کا کام اس لیے کیا تھا کہ وہ عورت کوروتی کو تم کو آسانی سے پہچان لیتی اور پھر اسے قبر میں اتارنا ممکن نہ ہوتا۔ سب کچھ بھاڑ میں جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ پتہ نہیں یہ کون سی عمارت ہے، کہاں واقع ہے، میں اس عمارت کے کس حصے میں، کس قبضے میں ہوں یا آزاد ہوں اور کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ جب اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکی تو جا کر بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دماغ کسی بھی قوت کی میراث نہیں ہوتا اور اس پر صرف نیند کی قوت حاوی ہوتی ہے۔ وہ آزاد ہوتا ہے، باقی سب اس کی غلط کاریاں ہوتی ہیں جو اس سے محبت چھین لیتی ہیں۔ میں سو گیا، اللہ کی عطا کی ہوئی ساری قوتیں میرے ساتھ تھی، جن میں نیند بھی ہے۔ کیسے مزے کی بات ہے! شیطان انسان کو بہکا تو سکتا ہے، اس سے گناہ تو کرا سکتا ہے، لیکن اس پورے وجود کے ساتھ جو اللہ کی عطا ہے وہ اس سے نیند نہیں چھین سکتا، بھوک نہیں چھین سکتا۔ یہاں وہ بے بس ہے۔ خوب جی بھر کر سویا، پھر آنکھ کھل گئی۔ وہی کمرہ تھا، وہی جگہ تھی، لیکن رات ہو چکی تھی۔ ماحول پر اندھیرا طاری تھا۔ پھر ایک بھاری آواز سنائی دی، تم جاگ گئے؟ سوال مجھ سے ہی تھا، میرے سوا یہاں کون تھا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ ہندو مندروں کی دیوداسی جیسی ایک عورت تھی جو پرانے ہندوانہ طرز کے لباس میں ملبوس تھی۔ وہی مجھ سے مخاطب تھی اور اس نے پھر سوال کیا، تم جاگ گئے؟
हाँ मैं जाग रहा हूँ, उठो मेरे साथ चलो। कहाँ? धनुकांड में। मियाँ मणि ज्ञान गर्भधारण के द्वार, ताकि तुम उनके चरणों में जाकर पवित्र स्थान हासिल कर लो। मेरी समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन उनके दरमियान था और एक बड़ी अजियतनाक जगह से निकला था और दोबारा उस जगह नहीं जाना चाहता था। चुनाचा उनके साथ तावन ज़रूरी था। मैं अपनी जगह से उठ गया। लिबास वगैरह तो उन्होंने दूसरा पहना ही दिया था और मैं साफ सुथरा ही था। चुनाचा मैं उस औरत के साथ चल पड़ा और वो मुझे लिए हुए एक बड़े से हॉल में दाखिल हुई। उस हाल के किनारे मैं क्या बताऊं कि ताहद्दे नज़र फैला हुआ था और उसमें बेशुमार साधु सर झुकाए बैठे थे। उनकी शक्लें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी मध्यम आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हाल के दरमियान एक बहुत बड़ा बुत नज़र आ रहा था, जिसके पैरों के पास एक चट्टान थी और उस चट्टान पर एक लंबे चौड़े बदन का साधु बैठा था, जिसने काले रंग का लिबास पहना था और उसकी गर्दन से एक काला सांप लिपटा हुआ था, जिसका चौड़ा फन खुला हुआ था और ये फन उसके सर पर फैला हुआ था। ये नकली सांप भी हो सकता था, लेकिन उसका फन कभी कभी हिलता और गर्दन से लिपटा उसका बदन जगह बदल रहा था, और जिसका मतलब था कि वो जिंदा है। फिर अचानक नींद तारीख माहौल रोशन होने लगा। ये रोशनी उस देव हैकल मुजस्मे की आंखों से निकल रही थी। हाल इतना रोशन हो गया कि सब कुछ साफ नज़र आने लगा। मैं एक कोने में खड़ा हुआ था कि एक आवाज़ मेरे कानों में आई, श्याम सुंदर। मैंने ये आवाज़ सुनी, लेकिन अभी मैंने अपना नाम भी पूरी तरह याद नहीं किया था, इसलिए मैं खामोश खड़ा रहा। तभी आवाज़ दोबारा उभरी। उसने मुझे श्याम सुंदर के नाम से ही मुखातब किया था और उसी वक्त मेरे साथ खड़ी औरत ने मेरे शाने पर हाथ रखकर मुझे आगे धकेलते हुए कहा, तुम्हें आवाज़ दी जा रही है। मैं चंद कदम आगे बढ़कर मुजस्मे के सामने पहुंच गया। तभी मुजस्मे के कदमों में बैठे पुजारी की आवाज़ उभरी, महामणि तेरा त्यादास तेरे चरणों में आया है, इसकी सेवा स्वीकार कर। और फिर वो मेरी तरफ रुख करके बोला, चल श्याम सुंदर, महामणि को सजदा कर, ये तुझे आशीर्वाद देगा। क्या करूं? मैंने फिर पूछा। अभी तक खड़ा है, सजदे में गिर जा महामणि के चरणों में, उसने गजबनाक लहजे में कहा। और उसी वक्त ना जाने क्या हुआ और एक मध्यम सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। ये अज़ान की आवाज़ थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझे अज़ान की आवाज़ सुनाई दी और मैं झुरझुरी सी लेकर रह गया। तूने सुना नहीं श्याम सुंदर? सजदा कर मियाँ मणि के सामने, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आवाज़ फिर मेरे कानों में गूंजी। ये आवाज़ मौलवी कुदरतुल्लाह की थी, जो हमारे मोहल्ले के मस्जिद के पेश इमाम थे। और जब भी किसी के यहाँ बेटे या बेटी की वलादत होती थी, मौलवी कुदरतुल्लाह ही उसके कान में अजान देते थे। बड़े होकर मैंने अक्सर सोचा था कि पैदा होने वाला बच्चा भला इस आवाज़ को क्या सुन सकता होगा, वो तो दुनिया से नावाकिफ़ होता है। लेकिन आज वही आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। वो आवाज़ मुझे बता रही थी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उसी को सजदा जायज़ है। ऐसे बुत और पत्थर के टुकड़े लाखों हैं और उन्हें सजदा करना हमाकत है, गुनाह है, शिरक है। बहुत सी आवाज़ें उभरी। क्या ये मियाँ मणि को सजदा नहीं करेगा? क्या ये मियाँ मणि का अपमान करेगा? ये अधर्मी है, ये हमारा धर्म स्वीकार नहीं कर रहा, मारो इसे, जीता जला दो, मारो पापी को। और उसने ज्ञान गर्दारी का अपमान किया है इसने। खामोश। बादलों जैसी गर्ज उभरी और आवाज़ें बंद हो गई। ये दूसरे धर्म का है, महामणि का धर्म स्वीकार करने में इसे समय लगेगा। हम कौन होते हैं इसे सज़ा देने वाले? जिसका मुजरम है वो जाने। ये आवाज़ मुजस्मे के पैरों में बैठे भगत की थी, जिसे ये लोग ना जाने कैसे कैसे नामों से मुखातब कर रहे थे। और तुम लोग अपनी भक्ति करो, ये ठीक हो जाएगा और एक दिन तुम्हारे साथ भक्ति में शामिल होगा। भक्त ने कहा, फिर बोला, जाओ रे और इसे इसके स्थान पर पहुंचा दो। और फौरन ही 4-5 लंबे चौड़े साधु अपनी जगह से उठे और उन्होंने मेरे बाजू पकड़ लिए। वो मुझे तकरीबन घसीटते हुए उस जगह से बाहर निकाल लाए। ये मंदिर नुमा जगह बेहद वसी थी और तो और बड़े बड़े हाल और राहदारियाँ थी, जिनका माहौल बेहद पुरअसरार और भयानक था। फिर वो एक जगह रुके, एक दरवाज़ा खुला और जिसकी दूसरी तरफ सीढ़ियाँ थी। उन सीढ़ियों को अबूर करके मुझे एक तय खाने में पहुंचा दिया गया।
ये तहखाना भी बहुत वसी था, लेकिन अंदर कदम रखकर खौफ की एक लहर मेरे पूरे बदन को लर्जा गई कि यहाँ दीवारों के साथ लातादाद इंसानी मुजस्मों के सूखे हुए पिंजर खड़े हुए थे। दूसरी खौफनाक बात यह थी कि इनकी खोपड़ियों में चिराग रोशन थे, जिनकी रोशनियां उनकी आंखों के गड़ों से बाहर आ रही थी। तुम यहाँ आराम करो। और मुझे लाने वालों में से एक ने कहा, सुनो, मेरी बात सुनो, बोलो, तुम मुझे यहाँ से कहीं और नहीं ले जा सकते। नहीं, लेकिन ये किसी ने कहना चाहा, लेकिन जो शख्स मुझसे बात कर रहा था उसने हाथ उठाकर कहा, तुमने महामणि को सजदा ना करके अपने लिए बुरा वक्त बुला लिया है। ये सब जो अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं तुम जैसे ही हैं। आराम करो और सोचो। वो चले गए और मैं दहशत ज़दा नज़रों से चारों तरफ देखने लगा। आखिरकार मैं एक जगह ज़मीन पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। उस वक़्त एक बात का मुझे खसूसी एहसास हुआ, हालात कितने ही बदले हों, वक़्त कैसा ही ख़राब क्यों ना आ गया हो, कुदरत ने इंसान को कुछ सहूलतें दी हैं जिन्हें कोई नहीं छीन सकता। अगर कुदरत ना चाहे, और उनमें से एक नींद है। एक जिंदा इंसान, बीमार इंसान ढांचों के साथ तन्हा हो और फिर नींद आ जाए, लेकिन मैं ज़मीन पर लेट कर सो गया। दूसरी सुबह भी बस नींद पूरी हो जाने पर जागा था, वरना इस तहखाने में रोशनी किसी तरफ से नहीं आती थी। अपनी जगह उठकर बैठ गया। चारों तरफ ढांचों की फौज नज़र आ रही थी और सब के सब उसी तरह खड़े हुए थे। मैं उन्हें देखता रहा। बहुत देर गुजर गई, फिर रोशनी की एक रमक तहखाने में उभरी और मैं चौंक कर इधर देखने लगा। कुछ लोग तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतर आए तो मैंने उन्हें देखा, और उनमें से एक वही जे काल था जिसे मैंने मुजस्मे की गोद में बैठे देखा था। वो आगे था और बाकी लोग जो साधुओं के लिबास में थे उसके पीछे पीछे थे। खड़ा हो जा, वो मेरे करीब आकर बोला, और मैं खड़ा हो गया। तूने महामणि के चरणों में सर नहीं झुकाया था? वो बोला, हाँ। क्यों? मैं नहीं जानता। ये जानता है तू कौन है? नहीं, मैंने झटकेदार आवाज़ में जवाब दिया। हमारे लिए तू कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन ज्ञान घरदारी तुझसे कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं, इसलिए तेरी इतनी खबरगिरी की जा रही है। तुझे पता है कि तुझे गौतम भंसाली हमारे पास लाया है? मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे कुछ याद नहीं कि गौतम भंसाली कौन है, मैंने गुस्से से कहा। जे काल ने अपने साथियों की तरफ देखा, फिर बोला, अभी कच्चा है, पक्का होने में समय लगेगा, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। इसका क्या करें? यही जगह इसके लिए ठीक है, जे काल ने किसी कदर गुस्से से कहा, और फिर वो सब बाहर निकल गए। मैंने एक सर्द आह भरी और एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मेरे दिल में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। वक़्त गुजरता रहा और मुझे भूख प्यास लग रही थी, बदन नढाल हो रहा था। ये दिन और फिर रात भी गुजर गई और मेरे अंदर वहशत बीदार होने लगी। क्या मैं मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ? मगर क्यों? कोई जद्दोजहद ज़रूरी है। याददाश्त अलग साथ नहीं दे रही थी। कौन हूँ? क्या हूँ? यहाँ क्यों हूँ? सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक बात यह थी कि मुझे अपने बारे में कोई पता नहीं था। मेरी नज़र उन ढांचों की तरफ उठ गई और वो उसी तरह खड़े हुए थे। कुछ अरसे के बाद मेरा ढांचा भी इन्हीं के दरमियान खड़ा होगा। मेरे साथ एक और अज़ियतनाक अमल ये था कि मैं होशमंद था। एक एक चीज़ का एहसास था, बस ये याद नहीं था कि मैं कौन हूँ, मेरा माजी क्या है, और वो कमबख्त गौतम भंसाली कौन था जो मुझे इस अज़ियत में फंसा गया था। और जिस औरत का वो नाम ले रहा था वो कौन थी? मैं तो किसी को रोती को नहीं जानता। वो ज़रूर किसी गलतफहमी का शिकार हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? ये दिन भी गुजर गया। तीसरी सुबह दो अफराद मेरे लिए खाना लाए। खाने में क्या था मैंने गौर भी नहीं किया, बस खाने पर टूट पड़ा। खूब डट कर खाया और फिर कुछ देर के बाद मुझ पर गनूदगी तारी हो गई। खाने में कोई नशा आवर शय भी शामिल थी। फिर ना जाने कब आँख खुली, बदन में तवानाई का एहसास हो रहा था। कुछ ही लम्हों में अंदाज़ा हो गया कि जगह फिर बदल गई। मैं फिर किसी बेहतर जगह हूँ। ये तो कोई ख़ास जदीद कमरा था। उम्दा बिस्तर, उम्दा फर्नीचर, दीवारों पर हसीन तस्वीर आवीज़ां, लेकिन ये सब नामूस तस्वीरें थी। फिर वो लड़कियाँ मेरे लिए दो लड़कियाँ खाना ले पीने का सामान लाईं। महाराज नंदेरता ने कहा है कि आप फारग हो जाएं, तब वो आपसे मिलेंगे। महाराज नंदेरता? जी, ये कौन है? मैंने पूछा तो वो दोनों हंस पड़ी। महाराज हैं और कौन है? और उनमें से एक ने कहा। मैंने कुछ न कहा और खाना अपने सामने कर लिया। खाने से फारग हुए देर नहीं गुजरी थी कि वही दोनों लड़कियां फिर अंदर दाखिल हो गईं।
लेकिन उस वक़्त वो अकेली नहीं थी और उनके पीछे गेरवे रंग के लिबास में वही मनहूस जे काल था। मैंने उसे एक लम्हे में पहचान लिया था और उसके चेहरे पर वही नहूसत तारी थी। जे ज्ञान गुरु घरधारी, उसने हाथ जोड़कर कहा और मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे सामने बैठ गया। कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हें अपना नाम याद है? नहीं, मैंने जवाब दिया। श्याम सुंदर है तुम्हारा नाम। मेरा ये नाम नहीं है, लेकिन मुझे अपना असल नाम भी याद नहीं। तुम्हें तुम्हारा असल नाम भी याद आ जाएगा, उस समय हम तुम्हें सुंदर ही कहेंगे। सुंदर ज्ञान घरधारी किसी मनुष्य का नाम नहीं है, एक तहरीक का नाम है, एक मनसूबा है, और इस समय संसार के बेशुमार मुल्कों में इस तहरीक पर काम हो रहा है। मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर इस तहरीक के बारे में बताता हूँ। तुम देखो कि संसार में जो काम मनुष्य को सुकून और उसके जीवन को खुशियाँ दे सकते हैं वो कहाँ हो रहे हैं। दो टांगों दो हाथों वाला ही दरिंदा जिसे इंसान कहते हैं क्या कर रहा है? कौन किसका हमदर्द है? किसी एक का नाम बताओगे? हर जगह वो हो रहा है जिससे इंसान तेजी से तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमने एक परिवार बनाया है, ज्ञान घरधारी परिवार, और हम नेकों के खिलाफ जंग कर रहे हैं। हम संसार से उन बचे खुचे नेकोकारों को ख़त्म करना चाहते हैं जो बिला वजह नेकियों की लकीर पीट रहे हैं। तुम बस मुझे ऐसे नाम बता दो जो पूरी सच्चाई से अपने काम कर रहे हों। किसी देश, किसी मुल्क और उसमें बसने वालों का नाम ले लो। कहीं साइंस के नाम पर काम किया जा रहा है, बीमारों के हवाले से अस्पताल खोले जा रहे हैं और उनकी पब्लिसिटी हो रही है कि ये अस्पताल उन गरीबों के लिए हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते। ज़रा इन अस्पतालों में जाकर तो देखो, उन बीमार गरीबों के साथ कुत्तों से भी बदतर सलूक होता है और इलाज के नाम पर तनख्वाह दिया जाता है, जबकि उसके नाम पर करोड़ों की दौलत अमदाद के तौर पर हासिल की जाती है। गुलकारों, अदाकारों, खिलाड़ियों ने और किसी भी शोहरत याफ्ता ने ये मुनाफा बख्श कारोबार शुरू कर दिया, और ये तो छोटे पैमाने की बात है। बड़े पैमाने पर मैंने इन साइंसी तजर्बात की बात की है जो बड़े बड़े ममालिक में हो रहे हैं। एटमी हथियार बनाए जा रहे हैं, चांद, सितारे और सियारे तस्खीर किए जाते हैं, केमियावी हथियार बनाकर उनके तजर्बे किए जाते हैं। यहाँ लाखों करोड़ों इंसानों को लुक़्मा अजल बनाकर ये तजर्बा किया जा रहा है कि उन्हें बीमार करके शिफा कैसे दी जा सकती है। तंदुरुस्ती, इंसानी ज़िंदगी की तंदुरुस्ती को कैसे घिन लगाया जा सकता है, ये हो रहा है श्याम सुंदर। और तुम्हारे संसार में लाखों तंजीमें हैं जो इंसानियत की भलाई के नाम पर काम कर रही हैं। इंसानियत की भलाई के लिए वो कहके लगाने लगा और फिर बोला, वो नेकोकारों की अंजुमनें हैं, वो नेक लोग हैं जिनके पास दीन धर्म की ठेकेदारी है। ज़रा उनके अंदर उतर कर देखो, तुम्हें एक अनोखा संसार नज़र आएगा। और हम ज्ञान घरधारी परिवार, हम बुरे लोग हैं जो बुराई के नाम पर जमा हुए हैं और उन अच्छों को बुरा बना रहे हैं जो सारे संसार को अच्छा करने पर तुले हैं। मैं सुन रहा था, सोच रहा था, खामोश था। वो फिर बोला, तुम्हें भी इस परिवार का एक रुकन बनाया गया है। तुम्हें बहुत से काम दिए जाएंगे और तुम्हें वो अंजाम देने होंगे। तुम पर एक तजर्बा किया जा रहा है। जानते हो क्या तजर्बा है? नहीं, मेरे मुंह से निकला। तुम कोई धर्मदास नहीं हो, एक आम आदमी हो, लेकिन जब इतनी तकलीफ़ों के बाद जिससे निजात पाने के लिए मनुष्य सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तुमने महामनी को सजदा नहीं किया था, बार बार कहने पर भी सजदा नहीं किया। वो हमारे लिए हैरानी की बात है। मैं बताऊं क्यों? मेरे मुंह से आवाज़ निकली। बड़ी से बड़ी कसम खाकर कहता हूँ कि ये आवाज़ मेरी नहीं थी, ये अल्फाज मेरे साख्ता नहीं थे, कोई मेरे अंदर से बोला था। वो चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर बोला, हाँ बताओ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बाग होती। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ होती है जो हमारे रास्ते की इतनी बड़ी रुकावट है। हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कानों में सबसे पहली आवाज़ जो पहुँचाई जाती है वो ये होती है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूँ कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और ये बात दुनिया में हमारी आमद की तकमील कर देती है।
हमें और किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। ये आवाज़ मौत के वक़्त तक हमारी रहनुमाई करती है और हम जानते हैं कि मौत ज़रूर आनी है। उस पर सख्ता तारी हो गया। बहुत देर तक वो पथराया हुआ बैठा रहा, फिर जुनूनी लहजे में बोला, हमारी जंग इसी आवाज़ के ख़िलाफ़ है और हम वो एक भी जुमला पूरा नहीं कर पा रहा था। सख्त गुस्से में नज़र आ रहा था और फिर वो अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गया। मेरे अंदर कोई तासर नहीं था। जो कुछ मैंने कहा था वो मेरे अंदर की आवाज़ थी और बस। उस वक़्त मेरी ज़हनी हालत ही ठीक नहीं थी। फिर कोई ख़ास बात नहीं हुई, फिर ख़ास बात हो गई। वो जो कुछ करते थे अपने मखसूस अंदाज में करते थे, होश की आलम में नहीं करते थे। और एक सुबह फिर माहौल बदल गया। सुबह को जागा तो माहौल बदला हुआ था। वो जगह नहीं थी जहां मैं कैदी था, गोया मुझे कैद से रिहा कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि थोड़े फासले पर आबादी नज़र आ रही थी। ये सब मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैं ज़हनी तौर पर गुम ज़रूर था, लेकिन किसी भी तरह के माहौल से नावाकिफ़ नहीं था। दूर तक खूबसूरत मनाज़र बिखरे हुए थे। मेरे कदम गैर महसूस अंदाज में आगे बढ़ने लगे। अब मैं आबादी के किनारे आ गया था और सबसे पहले जो मुझे नज़र आया वो एक नौजवान लड़की थी। वो मुझे देखकर रुक गई थी। मैं तो उसके करीब नहीं गया, लेकिन वो चंद कदम चलकर मेरे पास आ गई। मेरे कदम रुक गए और वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। फिर उसने कहा कि तुम ज्ञान गर्दारी हो। ज्ञान गर्दारी? मैंने आहिस्ता से कहा। ये नाम मुझे याद था, ताहम मैंने कहा नहीं हो। वो हैरत से बोली, नहीं। इस बार मैंने ठोस लहजे में कहा, मगर तुम्हारे शरीर पर कपड़े तो ज्ञान गर्दारियों जैसे हैं। और उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा और मैंने चौंक कर अपने लिबास को देखा। वाकई वो ठीक कह रही थी। मेरे बदन पर सादमों जैसा लिबास था। तुम्हारा नाम क्या है? नाम? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, जैसे अपने बारे में सब कुछ भूल गए हो। वैसे हो बड़े सुंदर, उसने मीठे लहजे में कहा। हाँ, सुंदर। मैं जल्दी से बोला। मुझे अपना वो नाम याद आ गया जो उन लोगों ने मुझे दिया था। क्या सुंदर? वो शरारत से बोली। श्याम सुंदर, मैंने कहा। ये तुम्हारा नाम है? हाँ। चलो छुट्टी हुई, तुम्हारा नाम पता चल गया। मेरा नाम सनाया है। याद रहेगा मेरा नाम? हाँ। वो दो चट्टानें देख रहे हो? उसने एक तरफ इशारा करके कहा और मैंने उसकी तरफ देखा। रात को चौथी चंद्रमा निकलेगा, मैं वहाँ आ जाऊँगी और मुझे तुमसे काम है। मैं चलती हूँ, मगर तुम रात को वहाँ ज़रूर आ जाना, भूलना मत। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। मैं उसे देखता रह गया था और उस वक़्त फिर मेरे जहन में कुछ उंगलियां रेंगने लगी थी। मुझे कुछ याद आ रहा था, कुछ ना जाने क्या। मुझे खाने पीने की चीज़ें मिल गईं। वही चलते फिरते इंसान अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़। मेरे बदन पर चौंका साधुओं का लिबास था, इसलिए लोग मुझे इज़्ज़त दे रहे थे। खाने पीने के लिए भी उन्होंने ही मुझे दिया। दिन की बातें मुझे याद नहीं आ रही थी, लेकिन ना जाने कहाँ से घूमता फिरता। अलबत्ता शाम को मुझे वो दोनों चट्टानें नज़र आ गई और उनके साथ ही सनाया भी याद आ गई। मेरे कदम उस तरफ उठ गए और कुछ देर के बाद मैं उन चट्टानों के पास पहुंच गया। चट्टानों के दरमियान वक़्त गुजरने लगा। फिर चांद निकल आया और मैंने दूर से उसे आते हुए देखा। उसने बड़ा खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, बालों में फूल लगाए थे। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरे पास आकर वो मुस्कुराई। मुझे पहचान गए? हाँ। क्या नाम है मेरा? सनाया, मैंने कहा। अरे वाह, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अच्छी लगी। जब कोई किसी को अच्छा लगता है तब ही वो याद रहता है। जैसे मुझे तुम्हारा नाम याद है, श्याम सुंदर। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे काम है। हाँ, बताओ क्या काम है? इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अभी तो चंद्रमा ने मुख दिखाया है, चांदनी धरती पर उतरी है, फूल महक रहे हैं, झरने सोना उगल रहे हैं। हवाओं को कुछ और ठंडा होने दो। ये हमें आवाज़ें देंगी, हमसे कहेंगी कि आओ मिल जाएं। हम सौगंध और समन की तरह एक हो जाएं। चलो चांद और गगन की तरह। और उसकी आवाज़ ख्वाबनाक हो गई और मैं उसे परेशानी से देखने लगा। सनाया, तुम कौन हो? बुद्धू हो निरे, बुद्धू के बुद्धू। सुनो, बताती हूँ। मेरे पिता का नाम अलागा है। भाई का नाम सलोगा। अच्छा फिर? और वो जिससे मेरी शादी करना चाहते हैं उसका नाम पोगास है। टेढ़े मुंह और चंदी आँखों वाला पोगास, और मुझे उससे नफ़रत है।
मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मगर सब मुझे मजबूर कर रहे हैं। तब महामणि जयकाल ने मेरे सपने में आकर मुझे मेरी मुश्किल का उपाय बताया। महामणि जयकाल को तुम कैसे जानती हो? बस वो मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर मैं ज्ञान गरदार बन जाऊं तो मेरी मुश्किल हल हो सकती है। वो मुझे ज्ञान गरदारों के बारे में बताने लगे और मैं तैयार हो गई। तुम सामने आए तो मुझे पता चल गया कि तुम ज्ञान गरदारी हो। कैसे? तुम्हारे कपड़ों के से हुलिये से मुझे यही बताया गया था। उपाय क्या है? मैंने पूछा तो उसके चेहरे पर शर्म की सुर्खी फैल गई और वो ज़मीन की तरफ देखने लगी। फिर बोली, तुम मुझे अपने शरीर में स्वीकार कर लो। हमारे यहाँ नर्नगुप्त मंदिर है जहाँ नर्नगुप्त का बुत रखा हुआ है। जब किसी की शादी तय होती है तो लड़की को नर्नगुप्त के चरणों में जाकर सौगंध खाना पड़ती है कि वो कंवारी है। अगर वो कंवारी होती है तो नर्नगुप्त महाराज शांत रहते हैं, और अगर वो कंवारी नहीं होती तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं, और उनके सुर्ख हो जाने से सबको पता चल जाता है कि कन्या कंवारी नहीं है। सो मैं पुगा से शादी से बचना चाहती हूँ। मैं उसके बात की समझने की कोशिश करने लगा, और जब उसकी बात मेरी समझ में आई तो मैं खुद नर्नगुप्त बन गया और मैंने उसका चेहरा देखा और उसकी आंखें झुकी हुई थी, मेरी कंपटियां जल रही थीं। अजीब पेशकश थी। मेरी समझ में नहीं आया कि उसे क्या जवाब दूं, लेकिन मेरे दिल में एक कराहियत सी उभरी थी और उससे ये पूछने को दिल नहीं चाहा कि जब नर्नगुप्त को ये बता देता है कि कन्या कुंवारी नहीं तो फिर कन्या पर क्या बीतती है, उसके अहले ख़ानदान, उसके कबीले वाले उसके साथ क्या सलूक करते हैं। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। जो वक्त गुजर रहा था और उसकी सांस बूझल हुए जा रहे थे, और जब यह खामोशी तवील हो गई तो उसकी लरजती आवाज़ उभरी, सुंदर जी। अब मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाया था कि आबादी की तरफ से कुछ शोर उभरा और फिर बहुत सी मशालें नजर आईं जो उसी तरफ दौड़ रही थी। ये कौन है? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। हाय दिया, किसी को पता चल गया। मैंने तुम्हें दी सूर्या को बता दिया था और उसने किसी के कानों में ये ना खबर फूंक दी हो। और वह खौफजदा लहजे में बोली, वो जाती जहन्नम में और सूर्या जाती चूल्हे में। मेरे साथ जो होने वाला था उसका मुझे अंदाज़ा हो गया। मछलों की रोशनी के साए में मैंने बहुत से लाठ बरादर बफरे हुए लोगों को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा था, जो ज़ाहिर है कि मेरे लिए मिठाई लेकर नहीं आ रहे थे, और अब इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि वहीं खड़े होकर उनका इंतज़ार करता। मैंने पीछे की तरफ छलांग लगाई और भागता चला गया, और उस बेचारी मुसीबत की मारी ने अपने बचाव के लिए क्या किया मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं अब रुके बगैर दौड़ रहा था और मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या है। मेरी रफ्तार बहुत तेज़ थी और मैं किसी घोड़े की तरह दौड़ रहा था। फिर मेरे कानों ने एक मुसलसल धाड़ सुनी। ये पानी की आवाज़ थी। समुंदर। मेरे ज़हन में एक नाम गूंजा, हाँ समुंदर। मैंने पलट कर नहीं देखा और फिर मुझे अपने सामने सफ़ेद झाग उड़ाती हुई लहरें नजर आईं। कुछ ही लम्हों के बाद मैं उनके करीब था। मेरा दिल कह रहा था कि निकल जाओ, जैसे भी बन पड़े वहाँ से निकल जाओ, जो होगा देखा जाएगा, और मुझे उस पुर इसरार तिलस्म से तो निजात मिल जाएगी। मैं समुंदर में कूद गया। शायद मैं तैरना जानता था। तूफ़ानी लहरों को चीरता हुआ मैं और आगे निकलता गया। एक अनोखा सफ़र, और जिसने सोचने समझने की कुव्वतें सलब कर ली थी। ना जाने मैं क्यों तैर रहा था, ना जाने मैं क्यों आगे बढ़ रहा था। समुंदर कोई मुदाफ़त नहीं कर रहा था और उसके बगोले बेहद बुर्दबार थे, जैसे उसने मुझे मेहमान की हैसियत से कबूल कर लिया हो। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं समुंदर में आगे बढ़ने के लिए कोई जद्दोजहद कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन ये अंदाज़ा हो रहा था कि मेरा बदन मुतहरक है, हवाएं मुझे आगे धकेल रही हैं। हैरत की बात थी कि मैं डूबा नहीं था। फिर मैं सो गया और पानी का बिस्तर, सूरज की रोशनी और फिर जागने का एहसास, ज़िंदगी ने मेरी हिफाजत की थी। मैं इस वक्त पानी में नहीं था, बल्कि भूरे रंग की रेत मेरे लिए नरम बिस्तर बनी हुई थी। आसमान पर परिंदे उड़ रहे थे और माहौल बड़ा सुहाना लग रहा था। मैं देर तक उसी तरह लेटा रहा, फिर उठकर बैठ गया। कोई जजीरा था। साहल से दूर दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। पता नहीं यहाँ आबादी थी या नहीं। काहलों की तरह लेटा रहा। मुझे बस वो लम्हात याद थे जब मैंने खुद को उन शैतान ज़दों के जंगल में पाया था, और अब मुझे वो अपने पैरोकारों में शामिल करना चाहते थे, लेकिन मुझे ये शैतानी अमल कबूल नहीं था। और उसके बाद से अब तक की सूरत हाल मुझे याद थी।
आखिरी अमल उस लड़की का था। पता नहीं उस कबीले वालों ने उसके साथ क्या किया हो। अब यहाँ पड़े रहना बेकार था। लिबास भी बुरी तरह गंदा हो रहा था, लेकिन इस सिलसिले में कुछ नहीं किया जा सकता था। कुछ लम्हे खामोश बैठे रहने के बाद मैं उठकर उन दरख्तों की तरफ चल पड़ा जो दूर नजर आ रहे थे। भूख भी लग रही थी। हो सकता है कि वहाँ कुछ ऐसे फल मिल जाएं जो खाने पीने में कारआमद हो। मैं उन्हीं की तलाश में था और आखिरकार उन दरख्तों के पास पहुँच गया। लेकिन अचानक मुझे एक अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ। ये गलतफहमी नहीं थी, खुशबू आ रही थी और ये खुशबू गोश्त भुनने की खुशबू थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। दरख्तों ही के दरमियान यहाँ से कुछ फासले पर धुएं का गुबार उठ रहा था। हाँ, गोश्त भुनने की खुशबू भी उधर से ही आ रही थी। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। इसका मतलब है कि वहाँ कोई है, ज़रूर वहाँ कोई है। मेरे कदम तेजी से उसकी तरफ चल पड़े। धुएं का गुबार आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा था। मैं उसी की सीध में सफ़र कर रहा था और गोश्त भुनने की खुशबू मेरी रहनुमाई कर रही थी। फिर मुझे वो आग नज़र आ गई जिससे धुआं उठ रहा था। बहुत सी लकड़ियाँ एक दूसरे पर चुनी हुई थी, लेकिन उन पर गोश्त कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, उन लकड़ियों के पीछे एक नंग धड़ंग जटाधारी साधु ज़रूर नज़र आ रहा था, जिसकी आंखें बंद थी और उसके पास एक बड़ी सी मिट्टी के बर्तन में एक बरादा सा रखा हुआ था, जिसमें से वो मुट्ठी भर भर कर बरादा जलती लकड़ियों पर डालता और गोश्त भुनने जैसी चिरान सी बरादे के धुएं से उठ रही थी। मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई। मैंने तो सोचा था कि अगर कोई गोश्त भून रहा है तो उसका थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे भी मिल जाएगा। लेकिन उसी वक्त साधु ने आंखें खोल दी, सुर्ख अंगारा आंखें। वो कुछ लम्हे खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर बोला, कौन है तू?